Okay. As per the scheduled time, we will start the session, and meanwhile other participants will join. So today we have privilege that we have Mrs. Alpa Sheth, the yoga trainer, with us. Madam was practicing as an advocate in Rajkot since 2004 and was an active member of Rajkot Bar Association since 2004. Thereafter, in 2006, she has started yoga with the purpose of maintaining overall physical well-being. She is giving honorary service as yoga instructor at Sri Ram Krishna Ashram, Yagnik Road, Rajkot for last 5 years. And she is also giving honorary service to Aqua Yoga instructor and was also a chief coordinator of swimming pool yoga in entire Rajkot city for Rajkot Municipal Corporation, and even for World Yoga Day celebration. She is coordinating since last 4 years. With an effort to increase awareness of women's health among members of society and thereby create an overall healthy and more cautious community, she has created and operating a non-profit organization with the name of Fit and Find. She is also associated with Pinnathon Rajkot chapter. The Pinnathon, India's biggest women's run, is an initiative of United Sister Foundation and organized by Maximus and Mice Media Solutions Private Limited. It is created with the specific purpose of getting more and more women to adopt a fitter lifestyle and to highlight the need for increased awareness about the breast cancer and other health issues that put women's life at risk. So, Madam is deeply involved with various fitness awareness programs specifically for women. And today we have that privilege that Madam with us. She will give us the guidance regarding how to remain fit and how you can get benefit from practicing yoga. तो आज हमारे साथ मैडम है, तो I will request Madam to take over the charge. Madam, we have more than 78 participants, and by the time others will join, so we can start the session now. Thank you, Tarak sir. Yeah. First of all, thank you to Marwadi Education Foundation and AICTE Atal Academy for inviting me. Thank you. आज का सेशन हम लोग हिंदी में लेंगे क्योंकि ना तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है और ना ही आप इतनी अच्छी गुजराती समझ पाओगे, तो दोनों को कंबाइन करते हुए मैंने हिंदी प्रेफर किया है, तो आज हम हिंदी में सेशन लेंगे। मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा हिंदी भी मुझे सिखाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सबको मेरा प्यार भरा सुबह सुबह का नमस्कार। आप सब तैयार हैं मेरे साथ 1.5 घंटा स्पेंड करने के लिए? सबसे पहले हम लोग योगा का आज का सेशन शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग ओमकार करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ 1.5 घंटा जुड़ जाए और मेरे साथ मैं जो बोल रही हूँ और मैं जो करा रही हूँ वो आप फॉलो भी करें मेरे साथ साथ। तारक सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, हाँ यस मैडम, आवाज अच्छी तरह से आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। कोई भी योगा का सेशन शुरू करते हुए पहले हम लोग ओमकार का अवश्य अभ्यास करते हैं। 3 बार ओमकार करेंगे, मेरे साथ आप सब भी करेंगे। मैं चाहती हूँ आप सब अपने कैमरे ऑन रखें,
मुझे कैमरा सबका ऑन चाहिए ताकि मुझे भी लगे कि मैं अकेली अकेली बोल नहीं रही हूँ, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले लंबी गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस को छोड़े, गहरी सांस भरे, गहरी सांस छोड़े, गहरी सांस भरे, फिर से गहरी सांस छोड़े। अपने आप को ओमकार के लिए तैयार करें। सांस भरे, ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ फिर से लंबी सांस ले। लास्ट बार सांस भरिए। सब साथ मिलकर एक बार पहले प्रार्थना करेंगे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रख करते हुए अपनी आंखों पर रखें और हल्के से अपनी आंखें खोल दीजिए। नमस्कार सबको, आप सब जुड़ गए हैं मेरे साथ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। सबसे पहले तो मैं आपका आज का लेक्चर है, मेरा टॉपिक है योगा, योगा के ऊपर ही। तो योगा और मेडिटेशन के बारे में मुझे थोड़ा बताना है आप सबको। सबसे पहले आप में से कितने लोग हैं जो योगा से जुड़ रहे हैं और योगा से जुड़े हुए भी हैं, और कितने लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि हम योग करेंगे, लेकिन योग में जाते हुए हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल इतने योगा क्लास चल रहे हैं। तो हमें पहले तो वो समझ में नहीं आता कि हम योगा क्लास में जाए या ना जाए, कौन से योगा क्लास में जाए। सबसे पहले मैं आपको ये योग की गलतफहमियां है वो दूर करना चाहती हूँ। योग है वो सिर्फ आध्यात्म से जुड़ी हुई ही नहीं है। योग ना ही तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, योग हमारी लाइफस्टाइल है। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है, अच्छे जीवन का तरीका अपनाना है, तो हम सबको योग अपनाना ही होगा। योग हमारी संस्कृति है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की दी हुई संस्कृति है। हम बचपन से ही योग कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये योग का ही एक पार्ट है। हम बच्चों को सिखा रही है। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, हम लोग उसको सिखा रहे हैं, बेटे ऐसे मत करना, बेटे ऐसे मत बोलना, बेटा चोरी करना पाप है, बेटा दूसरों की निंदा मत करो। कुछ ना कुछ जैसे 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 बच्चा बड़ा होता है, हम लोग उसको सिखा
बाद में बच्चा बड़ा होता है, हम लोग उसको स्कूल में डालते हैं। स्कूल में टीचर उसको सिखाते हैं ज्ञान का अभ्यास, जो आने वाली जिंदगी में उसको काम लगेगा, वो टीचर सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे हम आगे की जिंदगी में अपना व्यवहार करेंगे, और एजुकेशन देता है टीचर। तो ये सब योग ही है। योग में कई ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी है। योग का प्रचार वैसे तो हमारे पुराने साल से शिव संहिता से, भगवान शिव ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था शिव संहिता में। उसके बाद पतंजलि ऋषि ने पतंजलि सूत्र में योग का विवरण किया है। फिर स्वामी घेरड़ संहिता में स्वामी घेरड़ ने किया है। हठयोग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्मानंद ने किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है योग, वो हम पतंजलि ऋषि की ही योग पतंजलि सूत्र से ही हम लोग प्रभावित ज्यादा है, क्योंकि थैंक्स टू बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने इंडिया में, हम बाबा रामदेव के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा रामदेव जो भी है, जो भी कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने जो अच्छा किया है, जो कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, वो मैं बताना चाहती हूँ। योग का अगर सच में इंडिया में कुछ प्रचार प्रसार हुआ है, तो वो बाबा रामदेव के माध्यम से ही है, इसलिए हम उसको नमन करते हैं। बाबा रामदेव का जो है, वो उसका तो हर जगह पर पतंजलि योग क्लास है, आप सबको पता ही है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में हम योग का अष्टांग योग में उसने विभाजित किया है। अष्टांग योग में 8 पहलू दिए गए हैं, जिससे आप योग का अलग अलग माध्यम सीख रहे हैं। तो हम पहले से आते हैं जहां से हम बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। योग के अष्टांग योग है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम नियम क्या है? यम नियम है वो हमारे जीवन जीने की शैली है, हमारे जीवन जीने का तरीका है, जो हम बच्चे को सिखाते हैं, जो हम स्कूल में सिखाते हैं, जो हम घर में सिखाते हैं, और जो हर एक आदमी को, हर एक इंसान को अपने लाइफ टाइम तक फॉलो करना है, यम नियम। उसके बाद आसन, प्राणायाम आता है। आसन हमारे शरीर का विशेष एक्सरसाइज ही है, वैसे आप कहो तो। अपने हम बोलते हैं कि 84 लाख जीवाणु हमारे इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। 84 लाख जीवाणु मतलब जितने जितने जीव इस पृथ्वी पर है, उन सबको कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए हमारे आसना दिए गए हैं। उसमें से 84 है वो मेन आसना है। उसके बाद प्राणायाम आता है। प्राणायाम क्या है? आसन है वो हमारे बाह्य शरीर यानी कि आउटर बॉडी को इफेक्ट करता है, और प्राणायाम है वो हमारे इनर बॉडी को इफेक्ट करता है। हम लोग बाहर की क्रिया तो रोज कर लेते हैं, नहा लिया, साफ हो लिया, ब्रश कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अंदर की प्यूरिफिकेशन है वो हमारे प्राणायाम करते हैं। प्राण आयाम, प्राण की तरफ खींचना, मतलब कि अपने अंदर के शरीर की तरफ खींचना। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार मतलब उसकी तरफ खींचना। धारणा, ध्यान, समाधि वो अपने लेवल से थोड़ा ऊपर है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सब संसारी है और हम लोग मोह माया से जुड़े हुए हैं। इसलिए उस वहां तक पहुंचने के लिए बहुत देर है। सबको, आप में से कई फॉलो करते भी होंगे, उन सबको मेरा नमस्कार, उसको मेरा सादर वंदन। लेकिन हम यहाँ तक ही पहुंचे हैं कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वहां तक ही हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले तो योग क्या है? योग हमारी जीवन शैली है, वो तो मैंने आप सबको बता दिया। लेकिन आजकल लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है कि योग यानी आसना। तो आसना सिर्फ आसना
आसना नहीं है, वो मैंने आपको बताया। योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम सबसे पहले आता है। आसन का उल्लेख तो आप लोगों को पता होगा, शायद किसी को, अगर किसी ने पतंजलि सूत्र पढ़ा होगा तो उसमें पतंजलि पूरे सूत्र में आसन का कहीं विवरण ही नहीं है। आसन तो उसकी लास्ट गाथा में आता है। इसलिए जीवन जीने का तरीका ही योग है। और हम आज उस योग के बारे में नहीं, लेकिन हम लोग जो अभी जो संसारी जीव है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज आसन का। योग क्लास में कितने भी लोग जाते होंगे, लेकिन सभी योग क्लास में क्या होता है कि हम लोग क्लास में जाते हैं, वहां पर थोड़ा फॉलो करते हैं, फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। जैसे जिम में जाते हैं, जिम थोड़ा बहुत किया फिर वापस आ गए। लेकिन योग ऐसा नहीं है। योग में आसना आपको लाइफ टाइम करना है, क्योंकि वो लाइफ टाइम बेनिफिट के लिए ही तो है। आसन हमारे, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ दूसरी एक्टिविटी में नहीं करनी चाहिए, दूसरी एक्टिविटी भी हमें करनी ही चाहिए। कई लोग वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जुम्बा, जिम, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी में क्या है कि आपका ब्रेन है वो थोड़ा फास्ट चलता है। योग में क्या है, आपके ब्रेन को बैलेंस करता है। आप जिम में जाओगे तो जिम की एक्सरसाइज है वो थोड़ी फास्ट है, आपको पसीना पसीना हो जाता है। हाँ, आपको बॉडी रिड्यूस करना है, बॉडी को टोन करना है, बॉडी का किसी पार्ट में आपको फैट ज्यादा है वो बंद करनी है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम बेनिफिट चाहिए तो आपको योग को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरी कोई एक्टिविटी करोगे ना तो उसमें आपका एक एज लिमिट आ जाएगा। आप जो 18 साल या 25 साल का लोग जो जिम में या वॉकिंग रनिंग सब करते हैं वो 50-60 साल के बाद, क्योंकि हमारे बॉडी की इतनी नहीं रहती कि हम ये सब कर पाएंगे। 50-60 साल के बाद हमारा बॉडी थोड़ा कमजोर होने लगेगा। लेकिन एक योग ऐसा है जो हम अपने जीवन के आखिरी सांस तक हम योग को अपना सकते हैं, योग कर सकते हैं। इसलिए आसन करें और करवाए भी। हम लोग थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले, आप सब कपालभाति जानते होंगे। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, एक शुद्धि क्रिया है। कई लोगों को है कि कपालभाति है वो प्राणायाम है, लेकिन कपालभाति है शुद्धि क्रिया है। जैसे हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं वैसे ही अपने इनर बॉडी की शुद्धि करने के लिए कपालभाति है। हम थोड़ा कपालभाति का अभ्यास करते हैं ताकि आपको बोर न हो जाए। कपालभाति, कपाल मानी सिर, अपना फोरहेड, और भाति यानी तेज। कपालभाति नाम कैसे हुआ? कपालभाति में हमारे स्टमक की एक्सरसाइज होती है। इससे हमारा जो अंदर का पार्ट है वो मूवमेंट करता है। इससे हमारी कॉन्स्टिपेशन या पेट के अंदर की कोई भी खराबी है वो बैलेंस हो जाती है। उसको जैसे मालिश का काम करती है वो। तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, तो इसलिए आपका ब्लड के पूरा प्यूरिफाई हो जाता है। ब्लड जब प्यूरिफाई हो जाता है तो वैसे ही अपने फेस में, स्किन में वैसे भी ग्लो करने लगता है। इसलिए इसका नाम कपालभाति है। हम कपालभाति का अभ्यास थोड़ा करते हैं, सब साथ में मिलकर करते हैं। सबसे पहले आप लोग किसी भी आसन में बैठ जाए, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, या तो आपको ऐसे ही
सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे वैसे बैठिए, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी स्पाइन है वो बेंड नहीं होनी चाहिए, आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। जैसे मैं बैठी हूं ऐसे पूरा कड़क होकर, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। किसी भी आसन करे, कभी भी बैठे अपनी स्पाइन को ढीला मत छोड़े, क्योंकि वहां पर हमारे 7 चक्रास है, वो 7 चक्र है, वो हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। इसलिए पूरा सीधा बैठे, दोनों हाथों को अपने घुटनों पे टेके, इसे द्रोण मुद्रा बोलते हैं। द्रोण मुद्रा, हम सीधा बैठते हैं। फिर कपालभाति सबको आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको मैं दिखाती हूँ। एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद करेंगे। पहले एक बार आप सब देखिए। लंबी गहरी सांस ली, छोड़ी, सांस भरी, छोड़ी। जब आप सांस भरते हैं तो आपका पेट बाहर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर आता है। सांस भरते हैं तो पेट बाहर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। सांस भरी, सांस छोड़कर सिर्फ पेट को अंदर खींचना है, हमें सांस नहीं भरनी है। सांस को लेना छोड़ना अपने आप हो जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ सांस को छोड़ना है कपालभाति में। जैसे एक बार करके दिखाती हूँ, आप सब पहले देख लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ सांस को छोड़ना है, लेना नहीं है। आप सब अब मेरे साथ आप कीजिए, सांस भरिए, पूरे पूरे सांस छोड़ दीजिए और मेरे साथ कीजिए। रिलैक्स। एक बार नॉर्मल सांस ले लीजिए, सांस ली, सांस छोड़ी, इनहेल, एक्सहेल। एक बार और ट्राई करते हैं। सांस इनहेल, एक्सहेल एंड कंटिन्यू। रिलैक्स। कपालभाति अपना पूरा बॉडी प्यूरिफिकेशन कर देता है, पूरा बॉडी को प्योर करता है, ताकि हमारा ब्लड है वो ही प्योर हो जाता है कपालभाति से। जिसको डायबिटीज है, या तो जिसको अपने पेरेंट्स को या अपने लगता है कि हम मुझे डायबिटीज आ सकता है, इस उन लोगों को, डायबिटिक के पेशेंट को, और जिन लोगों को ऐसा भय सता रहा है कि शायद मुझे डायबिटीज आएगा, उन लोगों को कपालभाति हर रोज 10 मिनट करना चाहिए। इसके अपने पेनक्रियास की कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। कपालभाति आपको हर रोज 10 मिनट तो करना ही है। कपालभाति से बॉडी भी रिड्यूस होता है, अपना टमी का फैट है वो भी जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आप सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का मैंने बेसिक प्रॉब्लम जो जो आपका है वो मैंने लिया है मेरी नॉलेज में जो जो है, क्योंकि आप लोग पूरा दिन बैठते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं, पूरा दिन पढ़ाते हैं, इसलिए आपको सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बैक का या नेक का होगा, ऐसा मैंने सोचा है। या तो फ्रोजन शोल्डर होगा, क्योंकि आप लोग सब टीचिंग लाइन में है, तो आप लोगों को पूरा दिन बैठना पड़ता है,
पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए आप लोगों की बेसिक प्रॉब्लम मैंने ली है। आप लोगों का जो और अभी जो अपने लाइफस्टाइल में चल रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, फिर कोलेस्ट्रॉल, वो सब मैंने प्रॉब्लम को अभी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों में हो रहा है वो सब मैंने लिया है। उन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी और थोड़े बहुत उसके आसन भी सिखाऊंगी। मैंने ले लिया है कि अपना यहाँ का कमर का पेन, स्पाइन, आप लोग पूरा दिन पढ़ते हैं इसलिए आपकी आंखों में भी दर्द होता होगा। फिर पूरा दिन झुकना पड़ता है, कंप्यूटर, आजकल मोबाइल और कंप्यूटर हम लोग, आप लोग पढ़ाने में तो करते हो लेकिन पूरा दिन भी मोबाइल में ही जुड़े रहते हैं हम सब, तो इसलिए हमारी गर्दन अकड़ जाती है, इसलिए उसका मैंने ले लिया, नेक का है। फिर स्ट्रेस बहुत रहता है आजकल, स्ट्रेस की वजह से हम लोगों को ब्लड प्रेशर और वो सब होता है। स्ट्रेस है वो पूरी अपनी लाइफस्टाइल में अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें दर्द हो रहा है तो उसकी एक वजह स्ट्रेस ही है। कॉन्स्टिपेशन की वजह भी स्ट्रेस है, अब हमको भूख नहीं लगना उसकी वजह भी स्ट्रेस है, कोलेस्ट्रॉल की वजह भी स्ट्रेस है, हार्ट प्रॉब्लम की वजह भी स्ट्रेस है, माइग्रेन की वजह भी स्ट्रेस है। तो सबसे पहले स्ट्रेस रिमूव करना हमारा सबसे पहला ये होना चाहिए कि हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, सुबह से उठते हैं तब से हम लोग इतना भागदौड़ करते हैं, मुझे यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए स्ट्रेस हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ गया है। चाहे कितना भी हम लोग कर ले लेकिन स्ट्रेस से हम लोग छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए स्ट्रेस रिलीफ थोड़ा करेंगे। चलिए सब पहले अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, थोड़ी हम लोग बेसिक एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हील अप एंड डाउन, रिलैक्स। आप लोग पूरा दिन खड़े रहते हो, बढ़ाते हो, इसलिए आपके यहाँ हिल में पेन हो रहा है और कहीं कहीं को तो इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि वो लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं हिल पेन के लिए। तो हिल पेन के लिए मैं एक एक्सरसाइज दिखाती हूँ जो आप हर रोज कर सकते हो, आप अपने क्लास में भी बढ़ाते भी कर सकते हो। ऐसे एक एक्सरसाइज मैं आपको दिखाती हूँ जिन लोगों को हिल पेन है, अपने आसन में लास्ट आ जाए, फिर अपनी एड़ियों को हिल के ऊपर चलना है, सिर्फ ऐसे। फिर ऐसे ही पीछे जाइए, फिर आगे आए, ये अपना एक्यूप्रेशर ही है और कुछ नहीं है। हिल के आगे पीछे जाइए आसन में, आगे आइए, रिलैक्स, ऐसे ही अपने हिल को अप कर दीजिए और उंगलियों पे चलना है, आगे और पीछे सिर्फ उंगलियां पे। दिखने में सीधी सादी एक्सरसाइज आपके हील पेन को कब खत्म कर देगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें ही होती है जो हम अपने जीवन में अपनाए तो हमें कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े।
रिलैक्स, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम लोग घुटने बेंड करेंगे, दोनों हाथ आगे। जिन लोगों को नी पेन है, मैं सब एक्सरसाइज में बोलती जाऊंगी कि किसको करना है और किसको नहीं करना है, वो मैं बताती जाऊंगी। और कौन सी एक्सरसाइज किन रोग के लिए, कौन से दर्द को आप उससे भगा सकते हैं। चलिए, दोनों पैर साथ में जुड़े हुए, दोनों हाथ सामने, सिटिंग पोजीशन लेंगे। लेकिन जिन लोगों को घुटनों का पेन है वो नहीं करेंगे। एंड अप, inhale, exhale down, inhale, exhale down, inhale, exhale down, inhale and relax। इससे अपने घुटने मजबूत होते हैं। लेकिन जिन लोगों को घुटने का प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज दिखाती हूँ, जिनसे अपनी थाइस की जो फैट है वो बर्न होती है। दोनों हाथ आगे रखें अपने चेस्ट के पास, घुटने को ऊपर ले आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे नहीं झुकना है, अपना बॉडी पूरा सीधा रहेगा। सिर्फ पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वही हमें रिपीट करना है, लेकिन क्रॉस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों पाँव को स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैर खोल दीजिए। अगेन जिन लोगों को घुटने का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे, बाकी सब साथ में करेंगे। दोनों पैर जितने खुलते हैं उतने खोल दीजिए। अब हमें आगे झुकना नहीं है, सिर्फ साइड में। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4 अप। पहले पाँव को खोल दीजिए, जितना खुलता है उतना खोल दीजिए, उसके बाद ही करिए। और सिर्फ 90 एंगल, पूरा घुमाना नहीं है, सिर्फ 90 एंगल अपना, ये सिर्फ 90 एंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे अपने काफ मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने चलने की क्षमता बढ़ती है, अपने पैर मजबूत होते हैं। रिलैक्स। अगेन अपने दोनों पैरों को थोड़ा खोल दीजिए। अपने शोल्डर जितना जितना शोल्डर है उतना पैरों को खोल दीजिए। लेफ्ट हैंड को अप कर दीजिए। धीरे धीरे अपनी राइट साइड झुकिए, पूरा स्ट्रेचिंग आने दीजिए पूरे बॉडी में, साइड के पार्ट में पूरा आने दीजिए। अपने दोनों घुटने सीधे, जितना झुकते हैं उतना झुकिए, झुकिए 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 झुकिए। आप सांस छोड़ दीजिए, फिर सांस भरे। सांस भरते हुए वापस उसी मोड जगह पर झुके झुके, राइट साइड झुकिए झुकिए झुकिए
झुकिए, यस, जितना हो सकता है उतना झुक जाइए। अप, सेम एक्सरसाइज हम लेफ्ट साइड करेंगे। अपने राइट हैंड को अप कर दीजिए अपने कान के पीछे, सांस भरिए, सांस भरते हुए झुके 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 झुके। Up, exhale, again inhale and down, down, down. Yes, 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 थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। Up and relax. इससे जो हमारे यहाँ साइड में जो फैट जमा हुई है उसको अगर कम करनी है तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी एक पूरे बॉडी में स्ट्रेचिंग आएगी और आपकी बॉडी है वो शेप में आएगी। अब थोड़े पैर और खोल दीजिए, एक बार सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए, फिर से सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, इनहेल and exhale, down, 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 down. दोनों पैर नी से सीधे रहेंगे, डाउन, अप, इनहेल, exhale, down, 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 down. आप देखेंगे आपको काफ मसल्स में और पूरे पैर में आपको स्ट्रेचिंग आ रही है। इससे आपके पैर मजबूत होंगे। आप पूरा दिन खड़े रहते हैं, उसकी वजह से जो दर्द होता है वो भी कम हो जाएगा। रिलैक्स, धीरे धीरे ऊपर आइए, दोनों पैरों को नजदीक ले आइए, दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे ले जाइए, ऐसे। सांस भरते हुए अपने स्पाइन को सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे हम लोग पीछे की ओर झुकेंगे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग पीछे नहीं झुकेंगे, वो सिर्फ खड़े रहेंगे और देखेंगे। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं है वो लोग मेरे साथ सांस भरते हुए पीछे 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 झुके, जितना हो सकता है उतना झुके 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 झुके। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ी जगह बना दीजिए ताकि हम और ज्यादा झुक सके पीछे। सांस भरिए, झुके 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 एंड रिलैक्स। हम लोगों को आगे झुकने की आदत है, जो भी है वो सब हम नीचे से लेते हैं, नीचे झुकना हमारा स्वभाव है, लेकिन पीछे झुककर हमने कभी कुछ नहीं लिया। कभी ऐसा देखा है यहाँ बुक पड़ी है तो हम लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है हम लोग ऐसे भी ले? ऐसा हम लोग कभी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में नहीं है कि पीछे से कुछ ले। हम लोगों ने आगे से ही लेना सीखा है और पीछे कभी झुकना सीखा ही नहीं है, इसलिए हमारी ये स्पाइन है उसमें दर्द होता है। इसीलिए दिन में जितनी बार हो सके आप खड़े हो तब एक बार पीछे झुक जाइए। जब आप बैठे हो, बैठकर खड़े होते हो, तब एक बार ऐसे कर लीजिए ताकि आपकी स्पाइन में कभी दर्द ना हो। यस, वेरी गुड।
अब दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन में सीधा रख दीजिए। यस, अब हम लोग यहां से ट्विस्ट होंगे लेफ्ट साइड। चलो, साइड में ट्विस्ट होते हैं, सांस भरते हुए पीछे जाए पीछे जाए पीछे जाए, हाथ अपना बीच में आए और लेफ्ट साइड इनहेल एंड लेफ्ट, exhale middle, inhale right, exhale middle, inhale left, exhale middle, inhale right, exhale middle, inhale right, left, exhale middle and relax। हमने क्या किया, अपनी कमर को पहले साइड में झुकाया, फिर आगे और पीछे झुकाया और फिर हमने क्रॉस में किया, ताकि अपने पूरा जो बेली फैट है वो खत्म करना है ना सबको, कि रखना है, ये तो हमारी उम्र की निशानी है, हमें रखना है, ऐसा नहीं है ना। हम सबको पता है ऐसा करने से ही अपनी फैट जाएगी, लेकिन टाइम किसके पास है, इसलिए हम लोग नहीं करते। चलिए, अब पूरी कमर को घुमा देते हैं एक बार, दोनों पैर साथ में मिला लीजिए और पूरी कमर को थोड़ा बेल डांस कर लीजिए, राउंड पूरा। यस, 2 3 4 5, reverse anti-clockwise, 1 2 3 4 and 5, रिलैक्स। तो ये थोड़ा अपना डांस भी हो गया। चलो, दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन में खींच लीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए हाथों को, सांस भरते हुए पूरा बाहर खींचे खींचे खींचे, जैसे अपने हाथों को कोई खींच रहा है इतना खींचे खींचे खींचे, बाहर की ओर खींचे 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 खींचे। यस यस यस, जैसे अपने हाथ को तोड़कर फेंक देना है उतना जोर से खींचे बाहर की ओर एंड रिलैक्स। वैसे ही दोनों हाथों को फिर से उठाइए, धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाइए, ऊपर की ओर खींचे, पूरा खींचे खींचे, स्ट्रेच योर बॉडी, फुल बॉडी स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। अब दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ दीजिए, दोनों को आकाश की ओर अपनी हथेलियों को ले जाइए, पूरा बॉडी स्ट्रेच करें, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। अब दोनों पैरों को उठा लीजिए, पैरों की उंगलियों के ऊपर आ जाइए, पूरा बॉडी स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। अब पांव को नीचे रख दीजिए, हथेलियों को छोड़ दीजिए, धीरे धीरे नीचे आइए, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे नीचे आइए, अपने हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर पे रख दीजिए, दोनों अपने
हाथों को जो आगे ले आइए इसे। अब पूरे हाथों को शोल्डर से रोटेट करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे ले आइए, पीछे, आगे, पीछे, इनहेल, एक्सहेल, आगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिवर्स, नीचे से ऊपर ले जाइए, पीछे से आगे, इनहेल, एक्सहेल, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए और रिलैक्स। अपनी कोई भी एक्सरसाइज है वो हम ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो योग बन जाती है। और ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि ना ही सिर्फ आप जिस पार्ट को एक्सरसाइज दे रहे हैं वही पार्ट नहीं, बल्कि ब्रीदिंग के साथ करने से आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो हम पूरा दिन सोच सोच कर इतने परेशान हो जाते हैं, उसको भी थोड़ा बैलेंस मिलेगा। आप ब्रीदिंग के साथ करोगे तो जहां पर आप कर रहे हो वहीं पर आपका फोकस हो जाएगा। वैसे ही जब आप ऐसे ही करोगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग के साथ करोगे तो आपका फोकस है वो वही पार्ट पे जाएगा और इससे आपका बेनिफिट दुगना हो जाएगा। अपनी आज की लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले दोनों हाथ कमर पे, अपनी गर्दन की एक्सरसाइज, नेक की एक्सरसाइज, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। दिन में 3 या 4 बार करना ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पूरा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में बिजी रहते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अपने गर्दन को झुकाइए, सबको पता है लेकिन करना नहीं है। धीरे धीरे पीछे ले जाइए अपनी गर्दन को, सांस को भरते हुए। हो सके तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आइए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। पीछे, आगे, पीछे, आगे, रिवर्स, लेफ्ट टू राइट, अगेन पीछे जाइए, सांस लीजिए, आगे आइए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलैक्स। साथ में हम लोग ये पूरा दिन स्क्रीन पे टाइप करते रहते हैं, इसलिए हमारी उंगलियां जकड़ जाती है। हमें यहाँ पेन होता है, अपने यहाँ पेन होता है रिस्ट में, इसलिए पूरा दिन में ये उंगलियों से हमें अगर काम करना है तो उंगलियों की एक्सरसाइज भी जरूरी है। पूरे उंगलियों को दबाइए, पूरी अपने बंद कर दीजिए, हाथ को पूरी मुट्ठी बंद कर दीजिए और खोलिए। सांस भरते हुए पूरी बंद कर दीजिए, खोलिए, पूरा बंद कर दीजिए, खोलिए। इनहेल एंड एक्सहेल। और अपनी रिस्ट के लिए पूरे
खींचे, फिर अपने दूसरे हाथ से उसको खींचे। पूरा हाथ सीधा रहना चाहिए, ऐसे झुका हुआ नहीं, पूरा सीधा, और अपने मसल्स को पूरा खींच लीजिए, पूरा खींचिए 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 एंड रिलैक्स। ऐसे ही अपने हाथ को पहले नीचे कर दीजिए, फिर उसको खींचे, खींचो 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 एंड रिलैक्स। अब दूसरे हाथ में वैसे ही हाथ को ऊपर रखिए, सांस भरते हुए पूरे हाथ को खींचिए। आपको यहाँ पूरा स्ट्रेचिंग आना चाहिए। खींचो 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 एंड रिलैक्स। अब उसको नीचे ले लीजिए और फिर खींचिए, सांस भरते हुए स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। ये जो मैंने करवाई वो अपनी बेसिक एक्सरसाइज है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं होता है, तो आप सिर्फ इतनी एक्सरसाइज करोगे तो आपके फुल बॉडी में स्ट्रेचिंग आ जाएगी। दो तीन आसन खड़े खड़े दिखा देती हूँ, फिर मैं सबको बिठा देती हूँ, आप थक गए होंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन में सीधा रख दीजिए। राइट पैर है उसको थोड़ा एक सेकंड साइड में कर दीजिए, ऐसा पंजा साइड में। राइट को सांस को भरते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड अप। अपनी नजर है वो ऊपर आकाश की ओर, पूरा हाथ सीधा, दोनों पैर सीधा, हाथ जितना हो सके उतना नीचे, त्रिकोणासन। आप एक्सेल, पैर को सीधा कर दीजिए, लेफ्ट पैर को साइड में कर दीजिए। अगेन सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, झुके 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 एंड आपकी फिर से नजर ऊपर। आप देख रहे हैं आपके दोनों पैरों में खिंचाव आ रहा है। आपको जहां पेन हो रहा है वहीं अपनी नजर ले जाइए। आपको पेन हो रहा है वो महसूस कीजिए, आपको खिंचाव हो रही है वो महसूस कीजिए। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को अपने फिर से हिल अप एंड डाउन करके दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। एक आसन आपको बैलेंसिंग का दिखाती हूँ, क्योंकि हमें अपना माइंड बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। बैलेंस के आसन से आपका फोकस है वो क्लियर होता है। हमने जैसे वो ताड़ासन किया था उससे भी, और एक दूसरा आसन दिखाती हूँ वृक्षासन, उससे भी आपका बैलेंस ऑफ माइंड रहेगा और पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। एक बार दिखा देती हूँ, फिर सब साथ में करेंगे। अपने राइट पैर को लेकर अपने बॉडी के मूल में रख दीजिए, फिर दोनों हाथों को उठाकर ऊपर ले जाइए सांस भरते हुए, फिर हाथों को सीधा खींचना है और अपनी नजर को एक जगह पर टिकाना है। वृक्षासन। चलिए, इससे आपका बॉडी शेप में आता है। चलो साथ में सब करेंगे।
जिनसे नहीं होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, अगर नहीं होता है तो आप वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, मैं दिखाती हूँ। अगर वॉल है, वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, इससे भी बेनिफिट में कोई कमी नहीं आएगी। और फिर कीजिए, वॉल का सपोर्ट ले लिया और फिर किया। चलिए सब साथ में करते हैं। राइट लेग को अप ले लीजिए, जितना हो सकता है उतना ऊपर अपने मूड में ज्वाइन कर दीजिए। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सांस भरते हुए अप, पूरा बॉडी स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। पैर को नीचे रख दीजिए, लेफ्ट साइड करेंगे। अगर नहीं होता है तो दो लोग अपने बाजू में रखकर हाथ पकड़कर भी कर सकते हैं, इसके आसन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके बॉडी स्ट्रेच होना चाहिए पूरा। दूसरा पाँव ले लीजिए, अगेन दोनों हाथ ऊपर, इनहेल एंड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बैठ जाइए जगह पर अब। दोनों पैरों को आगे रख दीजिए ऐसे, और दोनों हाथों को पीछे रख दीजिए। अपने बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, पूरा बॉडी रिलैक्स। दोनों पांव के बीच में थोड़ी जगह, पूरा बॉडी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमने जो भी किया, जैसा भी किया, लेकिन उससे अपने बॉडी में कुछ ना कुछ तो बदलाव आया था। जब जब हमने नई नई एक्सरसाइज ट्राई की या आसन किया, तब कहीं ना कहीं तो हमारे बॉडी में खिंचाव आया, थोड़ा स्ट्रेचिंग आया। इसलिए उस पार्ट में हमें जहां जहां दर्द हुआ है वहां पर कुछ ना कुछ तो फर्क हुआ है। अगर हम रोज करेंगे ऐसी एक्सरसाइज तो हमारा बॉडी टोन होगा, कोई पेन नहीं होगा आपको। ये हम लोग क्या करते हैं कि हमें जिंदगी मुफ्त में मिल गई इसलिए कद्र नहीं करते। ईश्वर ने मानव दे दिया है, उसकी हमें कद्र भी करनी है। वो कहते हैं जिंदगी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी, खो गई तो सोना। इसलिए जिंदगी जो मिल गई है ना, वो हमें खिलौने की तरह लगती है। मिल गई है तो एक खिलौना ही है, मिट्टी की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर जब जब हमारा जो जो बॉडी का पार्ट खराब होता जा रहा है, कुछ कुछ दर्द होता है, तब हमें उस बॉडी के वो ऑर्गन की हमें वैल्यू पता चलती है कि ओ मुझे ये हुआ, ओ मैंने इसकी कद्र नहीं की। हमें पता होता है कि हमने कद्र नहीं की इसलिए खो गया है। इसलिए जिंदगी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। हमें इसे सोने की तरह संभाल कर रखनी है। बॉडी को रिलैक्स कर दिया पूरा, इनहेल एक्सहेल कर दो, सांस भरिए सांस छोड़िए, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। एक लंबी और गहरी सांस भरिए, लंबी और गहरी सांस छोड़ दीजिए। दो तीन आसन हम लोग बैठे बैठे करेंगे। सबसे पहले भद्रासन बटरफ्लाई करेंगे, क्योंकि ये अपने पैरों को मजबूत करता है। दोनों पैरों को ऐसे जोड़ दीजिए, साथ में दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लीजिए और दोनों घुटनों को ऐसे
बटरफ्लाई की तरह ऊपर नीचे करना है, कमर को पूरा सीधा रखना है। अगर कभी भी नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना है तो ये सब एक्सरसाइज करनी ही पड़ेंगी। बटरफ्लाई, पूरे पांव को ऊपर नीचे कीजिए, घुटने से मोड़कर, रिलैक्स, दोनों पांव को सीधा कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। हम लोग वज्रासन करेंगे। राइट लेग को पीछे ले जाइए और लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए, अपनी कमर सीधी। योग शास्त्र का एक ही ऐसा आसन जो आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, वो ये वज्रासन है। वज्रासन खाना खाने के तुरंत बाद करने से अपने जो खाया है वो पाचन करने में बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि हम यहाँ से अपना ब्लड फ्लो रोक देते हैं। इसलिए अपना पूरा बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो ऊपर के पार्ट में ही होता है, हमारे स्टमक में होता है, ताकि हमें डाइजेस्ट करने में आसानी रहे। इसलिए खाना खाने के बाद एक ही आसन हो सकता है, वो है वज्रासन। वज्रासन में जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो लोग आगे एक गादी रख दीजिए, ऐसे बैठिए। जिन लोगों को घुटने का प्रॉब्लम है वो वज्रासन कभी नहीं करेंगे, बाकी सब वज्रासन कर सकते हैं। एक ही आसन जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, बाकी कोई भी आसन हम खाना खाने के 3 घंटे के बाद कर सकते हैं, और खाना आसन करने के बाद 1 घंटे के बाद खाना खा सकते हैं। अगर पानी पीना हो तो आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। नहाना हो तो 20 मिनट के बाद नहा सकते हैं। सब आसन करने के बाद आप योग क्लास में जाते हो तो ये सब बताना पड़ता है योग टीचर को कि आपको ये करना है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कुछ करने से और ना करने से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो सबको पता होना चाहिए। कि हम लोग क्लास में तो चले जाते हैं, हमने टीवी में देख देख कर भी कर लिया, लेकिन करने की हमें दवाई भी डॉक्टर देते हैं, ये खाना खाने के पहले लेना और ये खाना खाने के बाद में लेना, ये सोने से पहले 1 घंटे पहले लेना, क्योंकि उस सब में जो जो मेडिसिन ऐड की है उसका वही प्रभाव होता है। वैसे ही हम लोग ये जो योग के आसन करते हैं उसमें भी कौन सा खाना खाने के पहले करना है और कौन सा बाद में, कौन सा कितने घंटे, वो आप सबको पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज, योगासन करने से पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। वज्रासन में ही सबसे पहले आसन करेंगे मंडूकासन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पेट की चर्बी कम करनी है, फैट बर्न करना है, जिन लोगों को डायबिटीज है, उन सबके लिए एक रामबाण इलाज है मंडूकासन। दोनों हाथों को अंगूठे को अंदर डाल के मुट्ठी बंद करनी है, अपनी नाभि की इधर उधर रखनी है, दोनों को पेट को अंदर, पेट के बाजू में रखनी है। फिर सांस को भरना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें नीचे झुकना है। पीछे से झुकना नहीं है, आगे से झुकना है। पहले पेट, फिर आएगी आपकी पीठ और लास्ट में आएगा आपका सर। धीरे धीरे नीचे झुकना है। ऊपर आइए, धीरे धीरे सांस भरते हुए। अपने पेनक्रियास को मजबूत करता है मंडूकासन, इसलिए डायबिटीज पेशेंट को डेली ये मंडूकासन करना चाहिए। फिर से एक बार करेंगे सब साथ में। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। झुकिए 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 झुकिए।
सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। वज्रासन को छोड़ दीजिए। राइट लेग को आगे ले आइए, फिर लेफ्ट लेग को आगे ले आइए। घुटने को ऊपर नीचे करते हुए दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों को खोलकर पैरों को अंदर बाहर कर दीजिए। एक और आसन दिखाती हूँ। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए अपनी स्पाइन को मजबूत करते हैं आसन। फिर से वज्रासन में आ जाइए। एक बार पहले देख लीजिए, सब फिर साथ में करेंगे। एक बार देख लीजिए। वज्रासन में ही खड़े हो जाना है। दोनों हाथ को ऊपर करते हुए सांस को भरते हुए राइट हैंड से राइट लेग को और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ते हुए पूरा पीछे को झुकेंगे। पूरा इससे अपने यहाँ पर नेक में स्ट्रेचिंग आएगा और पीठ में स्ट्रेचिंग आएगी। फिर दोनों हाथों को ऊपर लाकर छोड़ दीजिए। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, ज्यादातर लेडीज को होती है थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्र मानी कैमल, कैमल पोज भी से बोलते हैं। और आपकी जो स्पाइन है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है आसन। लेकिन अगेन जिन लोगों को घुटने का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। चलिए खड़े हो जाइए वज्रासन में। जिन लोगों को इसका प्रैक्टिस है वो ही करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए पीछे झुके, पूरा पीछे। रिलैक्स। फिर से वज्रासन में आ जाइए। इसका पूरा आसन कर लेते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। जिन लोगों ने उष्ट्रासन किया है वो सब करेंगे आसन। ऊपर आइए सांस भरते हुए। दोनों पैरों को छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। जब आप कोई आसन करते हैं, अगर बैकवर्ड का करते हैं तो उसके बाद फॉरवर्ड करना जरूरी है। सिर्फ बैक बैक किया, आगे का नहीं किया तो आपके फायदा होने से ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए कौन सा आसन किया है उसका पूरक आसन कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने पहले मंडूकासन किया था, फिर उष्ट्रासन किया, फिर हमने भूनमन वज्रासन किया। वो सब आसन आपके स्पाइन के लिए, आपके गले के लिए और स्टमक के लिए था। एक आसन दिखा देती हूँ। जिन लोगों को वेरिकोज वेन या तो जिन लोगों को क्या बोलते हैं आपको वेन का प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम, जिन लोगों को साइटिका है उसके लिए एक रामबाण आसन है। साइटिका के पेशेंट है वो इनको हर रोज करने से साइटिका की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। एक बार दिखा देती हूँ, आप लोगों को करना नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए। सिर्फ जिनको साइटिका है वो ही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। दोनों साइटिका के प्रॉब्लम वाले दोनों पैर सामने, राइट हैंड को नीचे रख दिया, लेफ्ट लेग के पीछे राइट लेग को, और अपना जो लेफ्ट लेग है वो पूरा पीछे ले जाना है ऐसे।
दोनों हाथ अपने घुटने पे रखो और पूरा पीछे खींचो। वो अपना पूरा पैर खींचना चाहिए पीछे, ऐसे। फिर आगे आइए और दूसरी साइड की है। ये यहाँ से साइटिका की वेन होती है, वो कमर से शुरू होकर पीछे पैर के एडी तक जाती है। वो जिन लोगों को साइटिका है उसको ही पता होता है उसका पेन कितना भयंकर होता है। धीरे धीरे पीछे जाइए। जिन लोगों को वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, वो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। दवाई खाने से अच्छा है अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अपने बॉडी के बारे में पता हो कि किस वजह से हमें हुआ है, और उसके मुताबिक अगर आप कोई ना कोई आसन, हर एक रोग के लिए योग शास्त्र में आसन है। हर एक रोग के लिए, एक भी सृष्टि का ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसके बारे में योग शास्त्र में आसन नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही रिसर्च किया होगा, उन लोगों को सबको सादर नमन के उन लोगों ने हमें इतनी अच्छी हमारे लिए इतना अच्छा योग शास्त्र छोड़ गए हैं, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप लोग इसे फॉलो करते हैं, हम समाज में फॉलो करते हैं, तो आधे से ज्यादा बीमारी तो हम लोग इससे हमारी खत्म हो जाएगी, और आधे से ज्यादा बीमारी तो हमारे किचन में होती है। उसका तो हम लोग अपने किचन से और अपने बॉडी की एक्सरसाइज से हम लोग पूरा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एक तो आसन आपको दिखाती हूँ, सीधा लेट जाइए। पहले मैं दिखा देती हूँ क्योंकि आप लेट जाओगे तो देखोगे कैसे, इसलिए पहले मैं दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे। उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन, दो आसन मैं करती हूँ, आपको पहले दिखाती हूँ, आप देख लीजिए, उसके बाद सब साथ में मिलकर करेंगे। पहले पीठ के बल सीधा सो जाना है, दोनों हाथों को अपने शरीर के बाजू में रखना है, दोनों पैरों को 45 डिग्री अप करना है सांस भरते हुए, दोनों कंधों को पीछे खींचे और पूरा बॉडी को, दोनों पैर सीधे, जुड़े मुड़े हुए नहीं, सीधे, ना ही इतना ना ही इतना, सिर्फ 45 डिग्री। इससे अपने जो पेट है, स्टमक है, उसमें इतना प्रेशर आएगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। अगर पेट कम करना है तो ये बहुत ही जरूरी आसन है, और बैलेंस ऑफ माइंड भी कर रखता है। धीरे धीरे नीचे रखिए। उत्थान आसन, पाद उत्थान आसन, पाद यानी पैर, उत्थान यानी ऊपर लेना, पाद उत्थान आसन। और दूसरा आसन है पवन मुक्तासन, वो भी अपनी इस लाइफस्टाइल में बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल कॉन्स्टिपेशन का पेट है वो हर रोग की जड़ है। इसलिए हमें अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो पूरा बॉडी इनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए ये अपने गैस, जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उनसे उसके लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाया, दोनों घुटनों को मोड़ा, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लिया, सांस भरते हुए अपने सर को ऊपर लिया। जिन लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो लेटे लेटे करेंगे, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो सब ऊपर उठाएंगे। रिलैक्स, अपने पैरों को पूरा अपने बॉडी से टच करवाना है, पूरा खींच कर। चलिए दोनों आसन करेंगे, सब लेट जाइए। इंस्ट्रक्शन देती हूँ उसको सिर्फ फॉलो कीजिए। दोनों हाथों को अपने बॉडी के पास रख दीजिए। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे,
जिन लोगों को अपने बैक पेन है वो नहीं करेंगे, बैक पेन वाले बिल्कुल नहीं करेंगे, बाकी सब पैर उठाएंगे सांस भरते हुए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स, दोनों पैरों को नीचे रख दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता। आसन में जल्दबाजी नहीं चलती, और जितनी आहिस्ता से आप लोग आसन को बांधते हो उस ऐसे ही छोड़ा कीजिए, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रख दीजिए, बॉडी के बाजू में, दोनों पैरों को उठाइए सांस भरते हुए। 45 डिग्री, आप जहां से आपको सिर्फ अपने पैर के उंगलियां दिखनी चाहिए उतना ही ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को नीचे रख दीजिए। आपने महसूस किया होगा कि आपके स्टमक में, पेट में कुछ हुआ। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ा मालिश कर लीजिए। दूसरा आसन करेंगे, पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को 90 डिग्री अप ले जाइए, 90 डिग्री अप ले जाइए दोनों पैरों को। दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, अपनी चेस्ट के बाजू में ले आइए। दोनों हाथों को उठाते हुए दोनों पैरों को अपने शरीर से लगा लीजिए, बॉडी से, और सांस भरते हुए सर को ऊपर उठाइए। पवन मुक्तासन। गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, आप सब में इसका फायदा उठा सकते हैं। रिलैक्स, दोनों हाथों से पैर को छोड़ लीजिए, पैर को 90 डिग्री आप ले जाइए, और उसके बाद धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए। अपनी पीठ को, स्पाइन को, बैक को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। वहीं पर आप अपने, अभी आप पीठ के बल लेटे हैं, अभी आप पेट के बल लेट जाइए, वहीं पर उल्टा सो जाइए, पेट के बल। यस, दोनों हाथों को अपने शोल्डर के बाजू में रखिए, दोनों पैर जुड़े हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे, आगे उठेंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। आगे उठिए, भुजंगासन। यस, मेंटेन कीजिए, सबको आता है, बहुत ही आसान आसन है। धीरे धीरे नीचे झुकिए। फिर से ऊपर आइए सांस भरते हुए, पीछे से दोनों पैर जुड़े हुए।
रिलैक्स, नीचे आ जाइए। साइड में होकर बैठ जाइए अपनी जगह पर। लेफ्ट साइड टर्न करके अपनी जगह पर आ जाइए, बैठ जाइए। आज का एक मैं लास्ट आसन दिखा रही हूँ आप लोगों को। वो आसन आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हर एक को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप लोग, पहले ही मैंने बताया, इतना हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, ना ही घर में किसी को बोल सकते हैं, ना ही आप लोग दफ्तर में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, आप लोग कॉलेज में काम करते हो, तो आपके सीनियर्स को कुछ नहीं बोल सकते, ना आपको स्टूडेंट को कभी कुछ बोल सकते हो। कुछ ना कुछ हम लोग अंदर ही अंदर भर रहे हैं। चाहे लेडीज है तो वो अपने घर में किसी को सब कुछ नहीं बता सकते। ऐसा जीवन में दिन में कई बार होता है कि हम किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलने से हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। हम या तो संबंध की वैल्यू ज्यादा करते हैं, या तो हम अपने जो बड़े हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए नहीं बोल पाते। हमें संस्कार ऐसे दिए गए हैं कि हमें अपने बड़ों को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो हर्ट ना हो जाए, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अपने मन के अंदर तो हम लोग भरते हैं रोज, और रोज थोड़ा 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 अपने मन के अंदर भरते हुए इतना गुब्बारा हो जाता है कि कई बार जब फटता है तो पूरे रिलेशनशिप की खत्म हो जाता है। इसलिए थोड़ा 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 हमें भरना नहीं है, तो हम उसको बोल भी नहीं सकते, तो हमारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? एक आसन ऐसा है सिंहासन, जो अपने गुस्से को, अपने अंदर जो इमोशंस छुपे हैं उसको हम बाहर कैसे निकालें, उसके लिए एक आसन है सिंहासन। वो मैं पहले आप सबको दिखाती हूँ। अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको माइग्रेन नहीं करना है, आपको हार्ट प्रॉब्लम नहीं करना है, आपको पेट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना है, आपको आपके बॉडी को स्वस्थ रखना है, आपके माइंड को स्वस्थ रखना है, तो ये आसन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अजीब है और बहुत ही जरूरी है। और मैं बोलती हूँ हर एक लेडीज को तो ये आसन दिन में 2 बार कर ही लेना चाहिए, ताकि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ही ना हो। और हर हस्बैंड को भी एक बार तो करना ही चाहिए। अगर आप फैमिली वाले हैं तो एक बार ये आसन डेली कर लिया कीजिए, फिर आराम से लेट जाए, चाहे दुनिया में जो होना हो जाए, मैं रिलैक्स हो गया। एक बार दिखा देती हूँ, आप सबको करना है मेरे साथ। सिंहासन यानी सिंह जैसे दहाड़ता है, वैसे ही हमें दहाड़ना है। और ये आसन जिन लोगों को थायराइड है उनके लिए बहुत 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 ही बेनिफिट्स देता है आसन। हम लोगों को क्या करना है, पहले एक बार देख लीजिए, सबको साथ में करना है। दोनों पैरों को आगे से खोल देना है, दोनों हाथों को ऐसे शेर की तरह ऐसे करना है, अपनी स्पाइन सीधी। फिर सांस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप देख लीजिए पहले एक बार। सांस को भरना है, पूरी अपनी जीवा को बाहर खींचना है। एक बार फिर से देख लीजिए, सांस भरी, आप सब करेंगे मेरे साथ, आप सबको करना है। एक बार मेरे साथ सब करिए, दोनों हाथों को ऐसे करिए,
दोनों पैरों को पहले खोल दीजिए शेर की तरह। जैसे जंगल में राजा शेर होता है, अपने बॉडी के मालिक हम खुद है, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हम अपने शरीर के मालिक है। जैसे जंगल का मालिक शेर, वैसे अपने बॉडी का मालिक हम है। दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने देना है। दूसरों पर हावी होने से हम अपने ही बॉडी को तकलीफ देते हैं। चलिए दोनों हाथों को ऐसे करिए, आगे रखिए, फिर सांस भरिए। मुझे आवाज आनी चाहिए। जीवा को बाहर खींचकर आंखों को पूरी खोल दीजिए। रिलैक्स। एक बार और करेंगे, एक बार और। सांस भरिए, जीवा को पूरी पूरी बाहर निकालिए, आंख पूरी खोलकर आवाज निकालिए गले से, जोर से, जोर से। रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें बंद कर दीजिए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। गले में जो खराश हुई है उसको मालिश कर दीजिए, मसाज दे दीजिए। हंसी आ रही है मत रोकिए, हंसना है हंस लीजिए, जो करना है करिए। लेकिन अगर ऐसे हम अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल सकते, फेंक सकते। अगर आप कभी भी गुस्सा हो तो ऐसा किसी के साथ गुस्सा करने से अपने रिलेशन को मत बिगड़ने दीजिए। आप एक कमरे में जाइए, जो भी गुस्सा है, स्ट्रेस है, उसको इस सिंहासन के माध्यम से बाहर निकालिए। फिर कमरे से बाहर आइए और बोलना, सब मुझे माफ कर दो, या तो आपसे सबसे माफी मांग लो। आपके काफी संबंध सुधर जाएंगे, आपका ब्रेन काफी हल्का हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये आसन में मजा आया होगा। चलिए इसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। आप अपनी जगह पर ही बैठिए, कोई भी आसन में आप बैठ जाइए। आंखें बंद, मन शांत, मन शांत। अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स। आसन के बाद हम लोग प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा प्राणायाम जो हमारे पूरे बॉडी को प्यूरिफाई करता है। हर रोज 5 मिनट वो प्राणायाम करने से हमारे अंदर की जितनी अशुद्धियां है वो बाहर निकल सकती है। हमारे बॉडी में 72,000 वेन है। उन सब में अगर प्राणवायु, ऑक्सीजन पहुंचाना है तो ये एक ही प्राणायाम ऐसा है जो हम एक प्राणायाम हर रोज 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट करने से आपके पूरे बॉडी में प्राणवायु यानी प्राण शक्ति का संचार हो जाता है। इसको हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, या तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोल सकते हैं। हमारी राइट नोस्ट्रिल पिगड़ा नाड़ी और लेफ्ट नोस्ट्रिल वो है इड़ा नाड़ी। इड़ा और पिंगड़ा, उन दोनों में से सांस को भरना है। और बीच में जो नाड़ी है वो नोस्ट्रिल से शुरू होकर अपने स्पाइन जहां खत्म होती है वहां तक पूरी नाड़ी जाती है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। हमारी तीन जो नाड़ी है वो पूरे बॉडी को बैलेंस करती है। इड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, यानी कि लेफ्ट, राइट और मध्यमा नाड़ी जैसे बोलते हैं। हमें जो हमारी लेफ्ट से हम लोग जब सांस भरते हैं तो वो हमारे राइट ब्रेन को इफेक्ट करती है, और राइट से सांस भरते हैं तो लेफ्ट ब्रेन को इफेक्ट करती है। जब हम लोग गुस्सा करते हैं तो देखना चाहिए कभी हमारी ये राइट नोस्ट्रिल है ना, वो ज्यादा काम कर रही होगी। उसका काम ही वो जब ज्यादा कुछ काम करते, गुस्सा करते, खूब हम पसीने वाला
हमारे खूब टेंशन आ जाती है, तब हमें मार्क करना चाहिए हमारी राइट नोस्ट्रिल ज्यादा काम कर रही है। वैसे ही जब आप प्राणायाम करेंगे, रात को सोए होंगे, या तो जब मन शांत होगा तब हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा काम करती है। तो ये हम लोगों को बैलेंस करने का ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो हमारे बॉडी के पूरे टेम्परेचर को बैलेंस करता है। सारी बीमारियां खत्म करनी है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हर रोज 5 मिनट करना ही चाहिए। आप लोगों को पहले दिखाती हूँ, उसके बाद सब साथ में करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट से सांस भरें, ये दोनों हाथों को, लेफ्ट को पहले ज्ञान मुद्रा में और राइट को 2 उंगलियां दबा दीजिए, इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। और अंगूठे से राइट को बंद करना है। लेफ्ट से सांस भरनी है, फिर लेफ्ट बंद करके राइट को छोड़ना है, राइट से सांस छोड़नी है, फिर राइट से सांस भरनी है और लेफ्ट से सांस छोड़नी है। ये एक बार करने से एक प्राणायाम होता है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ऐसी एक क्रिया करने से एक प्राणायाम होता है। वैसे ही प्राणायाम आपको रोज 5 मिनट करना है। सांस कितनी भरे और कितनी छोड़े वो भी आपको जानना चाहिए। जितनी आप सांस लेते हैं उससे दुगनी सांस छोड़नी है। जितना ऑक्सीजन हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ना है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो कचरा भरा है वो हमें ज्यादा ही ज्यादा बाहर निकालना है। इसलिए सब साथ में करते हैं। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale। कंटिन्यू रखिए। सांस भरते हुए पूरी पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेते हैं, छोड़ते हुए सांस से पूरी नेगेटिविटी बाहर फेंकते हैं। हमें अपने मन के अंदर, शरीर के अंदर सिर्फ अच्छा, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए। और लेफ्ट से पूरी शरीर की गंदगी, हमारी नेगेटिविटी जो भी है हमारे आसपास, वो सब फेंक देनी है सांस छोड़ते हुए। एक ही ऐसा प्राणायाम जो आपको पूरे बॉडी को प्यूरिफाई करता है, हमारे शरीर के एक एक अंग में, एक एक स्नायु में पूरा ऑक्सीजन फैलाता है। लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल करते हुए हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरा करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने बॉडी को हमने खुद खराब किया है, हमने खुद अपनी लाइफस्टाइल से खराब किया है। वो एक शेर है ना, मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम तो घर में ही भटके हैं, कैसे ठेठ ठिकाना आएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हम अपने आप ही अपना शरीर के दुश्मन बन गए हैं। अगर मेले में भटके होते तो बच्चे को कोई घर भी पहुंचा जाता, लेकिन अपने आप में ही भटके हुए हैं तो हमें कौन पहुंचाएगा अपने घर पे, हमें खुद ही पहुंचना पड़ेगा।
लास्ट में हम लोग ओमकार करेंगे। ओमकार अ, उ और म, तीन से ओमकार बनता है। अ, उ और म। अ है वो हमारे नाभि के नीचे से भाग से आता है। उ है वो हमारे पेट के ऊपर से नाभि से आता है। और म है वो हमारे मस्तिष्क के ऊपर से आता है। हमारे नीचे है वो वायु है, बीच में है वो पित्त प्रकृति। हम लोग जानते हैं हमारा शरीर है वो 3 प्रकृति से बना है, वात, पित्त और कफ। तो जिन लोगों को वात की प्रॉब्लम है वो अ का उच्चारण ज्यादा करेंगे। जिन लोगों को पित्त की प्रकृति है, पित्त ज्यादा बढ़ता है, वो उ का उच्चारण ज्यादा करते हैं। जिन लोगों की कफ प्रकृति है वो लोगों को म का उच्चारण ज्यादा करना चाहिए। वैसे ही हर एक को ओमकार बोलते हैं, तब सबका ओमकार सेम नहीं होना चाहिए। ओमकार किसको कितना करना है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से करना है। एक बार ओमकार करेंगे सब साथ में। आंखें बंद, सांस भरिए। एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। दोनों हाथों को जोड़िए नमस्कार मुद्रा में। पृथ्वी के सर्व का मंगल हो उसी भावना से शांति पाठ करेंगे सब साथ में मिलकर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आई होप आप सबको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आभारी हूँ मारवाड़ी एकेडमी, मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन और AICTE अटल एकेडमी की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन लोगों ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की अनुमति दी और मुझे इनवाइट किया। आप सबको अगर कुछ मेरा गलत हुआ हो तो मुझे अपनी बहन या बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अल्पाबेन। सही में सेशन काफ़ी अच्छा रहा और हमने भी लाइव में प्रैक्टिस करा। तो डेफिनेटली ये जो सीखे जो हमारे पार्टिसिपेंट ये सेशन के थ्रू लेंगे, तो हम यही आशा करते हैं कि सभी लोग हैं वो अपनी हेल्थ बनाने अच्छी रखने के लिए ये योगा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे। और पर्सनली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी डेली नहीं हो पाता है, लेकिन वीक में 3 बार करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उसमें कई जगह गलती होती है। तो दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस सेशन कि कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे सुधार करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही मतलब whoever आर नॉट प्रैक्टिसिंग योगा, वी रिक्वेस्ट एवरीवन के हमने भी फील किया है कि योगा प्रैक्टिस करने से हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है। इवन वी हैव डॉक्टर अंकुर सर विथ अस एंड ही इज आल्सो रेगुलर प्रैक्टिसर ऑफ योगा। अंकुर सर, आप भी कुछ? Yeah, of course. Am I audible? Yes sir, yes sir. जी, मिसेस अल्पा सेठ ने आज बहुत ही यानी यूजफुल कुछ योगा आसनास हमें सिखाए हैं और मैं और तारक और काफ़ी सारे फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पे हॉल में पैरेलल सेशन में जुड़ गए थे और काफ़ी हमने सीखा है आज। जो
मुझे अच्छा ये लगा कि मैडम ने हमें ये आसन सिखाए हैं जो हमारे डेली रूटीन में हम आराम से कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालना या शेड्यूल बनाना ऐसा जरूरी मुझे नहीं लगा। और सुबह की शुरुआत में अगर हम 20 से 25 मिनट ये सारे आसन 1 बाय 1 टेक्निकली करेक्टली करेंगे तो मेरे ख्याल से सबका ओवरऑल हेल्थ जो है वो काफी सुधर जाएगा। क्योंकि मैडम ने जो आसन बताए थे वो सारे आसन डेली लाइफ में काफी यूजफुल है। जैसे कि कमर के प्रॉब्लम होते हैं हमें, गर्दन के होते हैं, पैरों के या एड़ी के प्रॉब्लम है, तो उस सब के लिए मैडम ने काफी अच्छे से हमें मार्गदर्शन आज दिया है। तो हम मैडम के और एकेडमी के काफी शुक्रगुजार हैं for helping us and teaching us the right and correct way of asanas. Thank you, madam. Okay. Thank you. Thank you, madam. Yes. So participants will have next session sharp at 11:30 again, and madam has completed her lecture right on time at 11:15. Thank So you. thank you. Yes, madam. Yeah.